ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں جی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کہانی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی جس میں ہلکے گلابی رنگ کے پردے، پھولوں سے سجا بیڈ اور سفید گلابوں کی مہک ہر گوشے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نرم و نازک سا جہازی سائز کا بیڈ جس پر سرخ مخملی چادر بچھی تھی، اس کے بیچوں بیچ جویریہ دبکی بیٹھی تھی۔ دلہن کا سرخ جوڑا، اس پر نفیس زری کا کام، جھلملاتا دوپٹہ جو آدھا چہرہ چھپائے ہوئے تھا، اور بھاری زیورات جو اس پر خوب جچ رہے تھے، مگر یہ سب جتنا حسین تھا اتنا ہی بے چینی بھرا بھی ہوتا جا رہا تھا۔ جویریہ کی آنکھیں دروازے پر ٹکی تھیں، ہر گزرتا لمحہ اس کی دھڑکنوں میں بے ترتیب اضافہ کر رہا تھا۔ دل میں وسوسے شور مچا رہے تھے، کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتا؟ کہیں کوئی ناخوشگوار بات تو نہیں ہو گئی؟ کیا وہ واقعی میری زندگی کا ہمسفر بننا چاہتا ہے؟ وہ بار بار انہی سوالوں کے گرد گھوم رہی تھی، مگر ہر بار خالی جواب ہاتھ آتا۔ وہ صرف انٹر تک کی تعلیم حاصل کر سکی تھی، مگر اب ایک کامیاب ڈاکٹر کی شریک حیات بن چکی تھی۔ قسمت نے اسے بے حد نوازا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، آنکھوں میں امیدوں کے دیے روشن تھے، مگر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ کمرے کی گھڑی کی سوئیاں بڑی بے رحمی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ 12 کا وقت گزرا، پھر 1:15، پھر 1:30۔ جویریہ کی انگلیاں اپنے آنچل کو بار بار مروڑ رہی تھیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، یہ ٹک ٹک جیسے اس کے دل پر چوٹ کر رہی تھی۔ فرہاد کی غیر موجودگی اس کے دماغ پر چھانے لگی تھی۔ کبھی کسی دلہن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں؟ یہ سوچ ہی اس کو بے چین کیے جا رہی تھی۔ وہ جو خوشی سے نڈھال تھی اب گھبراہٹ کے زیر اثر آ چکی تھی۔ وہ ہر ذرا سی آہٹ پر چونک جاتی، کبھی دروازے کے ہینڈل کو گھورتی، کبھی نظریں جھکا کر دعا مانگنے لگتی کہ اب وقت طویل ہو رہا ہے، وہ آ جائے۔ رات کے 2 بجنے کو تھے جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ اب مزید انتظار اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے آہستہ سے دوپٹہ سرکایا، زیورات کی چھن چھن کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ سے اتری اور قدم گھسیٹتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی اداسی اتر آئی تھی، جیسے کوئی خواب ٹوٹنے کو ہو۔ ڈریسنگ روم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کو دیکھا۔ وہی چمکتا چہرہ، وہی سجی سنوری دلہن، مگر اب آنکھوں میں خوشی کے بجائے بے یقینی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنے زیورات اتارنے شروع کیے، دوپٹہ اتارا اور پھر جوڑا بدلنے لگی۔ اس دوران اس کی پلکیں نم ہو چکی تھیں، مگر وہ خود کو سنبھالے رہی، کیونکہ جانتی تھی رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جویریہ بھی بمشکل خود کو بستر پر سمیٹ کر لیٹی ہی تھی کہ دروازے کے ہینڈل کی گھومنے کی آواز اچانک گونجی۔ دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ سانس روک کر اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ چوکھٹ سے اندر داخل ہوا، فرہاد خان زادہ، وہی شخص جس سے اس کی زندگی بندھی تھی، ایک مکمل مرد، ایک پرکشش، باوقار اور بلا کا حسین انسان۔ اس کی لمبی قامت، سلیقے سے سنورے بال، ہلکی بڑی داڑھی اور آنکھوں میں چھپا سنجیدگی بھرا سکوت، ہر چیز میں ایسا جادو تھا کہ جو جویریہ کو لمحہ بھر کو جیسے سانس لینا بھول گئی۔ اس نے گھبرا کر فوراً خود کو سنبھالا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، نگاہیں جھکائے وہ دوپٹہ سنبھالتی خاموش بیٹھی رہی۔ فرہاد کی نظریں ایک پل کو اس کے وجود پر ٹکی، پھر وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے چلتا ہوا آیا اور اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ جویریہ نے ہونٹ میچے، وہ کہنے ہی لگی، وہ آپ سے دیر سے آئے تو میں نے کپڑے بدل لیے، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے فرہاد کو گہری نیند میں جاتے دیکھا تھا۔ اس کا جسم سکون سے بستر پر پھیلا ہوا تھا، سانسوں کی مدھم روانی اس کے سکون کی گواہی دے رہی تھی۔ جویریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ لمحہ بھر کو جیسے گنگ ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات، جس رات کا خواب ہر لڑکی بچپن سے دیکھتی ہے، وہ لمحہ جو زندگی کا سب سے خاص ہوتا ہے، اس لمحے میں مرد کا ایسا بے نیاز رویہ، اس کے ذہن میں شور اٹھنے لگا۔ دل کے نہا خانوں میں جیسے بجلی سی کوند گئی۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو چھونا چاہا، شاید جگانے کا ارادہ تھا، شاید وہ کچھ سننا چاہتی تھی، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک وضاحت، لیکن انگلیاں اس کے بدن سے چند انچ دور ہی رک گئیں، جیسے اندر کہیں کوئی روک رہی ہو، کوئی انا، کوئی غیرت، یا شاید کوئی انجانا ڈر۔ ہاتھ پیچھے کھینچتے ہی دل کی دیواریں بھیگ گئیں، پلکیں جھک گئیں اور آنکھوں کے کنارے خاموشی سے نم ہو گئے۔ فرہاد کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں ٹوٹن سی جاگی۔ کیا میں اتنی غیر اہم ہوں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ چپ چاپ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، مگر آنکھیں مسلسل اس پر جمی رہیں۔ سوتے ہوئے بھی وہ شاندار دکھائی دے رہا تھا، مگر جویریہ کے دل میں اب اس کی خوبصورتی نہیں، اس کی بے حسی چبھ رہی تھی۔ اسے وہ لفظ، وہ لمحہ چاہیے تھا جو ہر دلہن اپنی پہلی رات میں پاتی ہے، مگر یہاں تو سکوت تھا، خاموشی تھی، اور وہ شخص جو اس کی خواہش کا مرکز تھا، وہ خوابوں کو ٹھکرا کر نیند کی وادی میں جا چکا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی، گھڑی کی سوئیاں سرک رہی تھیں اور جویریہ کی پلکوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔
ایک ایسی رات جس کا خواب دل میں تھا وہ اب سوال بن چکی تھی، کیا یہ محبت کی شروعات ہے یا کوئی انجان فاصلہ؟ مگر جواب نہیں تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ صبح کی مدھم سی روشنی پردوں کے کناروں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 10 بجا رہی تھی جب جویریہ کی پلکیں سست روی سے لرزیں اور آنکھیں کھل گئیں۔ کچھ لمحے اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، کیا وقت ہے اور ارد گرد کی خاموشی کیوں اتنی غیر مانوس لگ رہی ہے۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں پھیلائیں، پلکوں کی نمی ابھی باقی تھی اور کمرے میں پھیلی تنہائی اس کے دل پر چھا گئی۔ نظر دائیں بائیں دوڑائی مگر بستر کا دوسرا کنارہ خالی تھا۔ فرحاد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل میں ایک انجانی خالی پن نے گھر کر لیا۔ رات کا واقعہ جیسے پوری شدت سے ذہن پر ضرب لگانے لگا۔ وہ لمحہ، وہ سرد مہری، وہ خاموشی، سب ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ وہ لب دبائے خاموشی سے سسکنے لگی، جیسے کوئی دبے دبے آنسو آنکھوں سے چھلکنے کی اجازت مانگ رہے ہوں۔ رونے کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ کمرے کی خاموشی میں بھی ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر سوال اٹھانے لگی تھی، اپنے مقام، اپنے رشتے کی اہمیت کو تولنے لگی تھی، مگر دل کی ترازو میں بس دکھ ہی بھاری لگ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ سفید لباس میں ملبوس، سنجیدہ مگر شفیق چہرہ لیے زیب النساء بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ جویریہ گھبرا کر فوراً سیدھی ہو گئی، اپنے آنسو دامن سے چھپانے کی کوشش کی، دوپٹہ ٹھیک کیا اور آنکھیں جھکا لیں۔ دل جیسے دہلنے لگا کہ کہیں وہ کچھ جان نہ گئی ہوں۔ زیب النساء بیگم آہستہ سے چلتی ہوئیں اس کے قریب آئیں اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ لمس ایسا تسلی بخش تھا کہ جویریہ کے آنسو پھر سے بہنے کو بےتاب ہو گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ بیٹا، ان کی آواز میں بے پناہ شفقت تھی، میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، لیکن لڑکیاں ہی گھر بساتی ہیں، مرد وہ تو باہر کے ہوتے ہیں، بے خبر بے پرواہ، عورتیں ہی چار دیواری میں رہ کر سب سنبھالتی ہیں، سب سہتی ہیں۔ وہ اس کے آنسو دیکھ چکی تھی۔ جویریہ کا سر جھکا رہا، دل چاہا کہ وہ سب کہہ دے، سب سن لے کوئی، مگر وہ صرف خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، جیسے ہر لفظ اس کے وجود میں اتر رہا ہو۔ میں ماں ہوں فرحاد کی، اس کی کمزوریاں جانتی ہوں، وہ تھکاوٹ، الجھن یا شاید اپنے خیالات میں گم ہو، پر تم ہار مت ماننا، میں نے بھی ایک وقت میں بہت کچھ سہ کر یہ گھر بسایا تھا، تب جا کے آج یہ چھت ہمارے سروں پر ہے، تمہیں بھی ہمت کرنی ہوگی بیٹا۔ جویریہ کی آنکھوں سے دو آنسو خاموشی سے نکلے، مگر چہرے پر اب سکون کا ہلکا سا سایہ تھا۔ وہ سر ہلا کر ان کی باتوں پر اثبات میں خاموشی سے جواب دے رہی تھی، جیسے وہ ہر لفظ اپنے دل پر نقش کر رہی ہو۔ زیب النساء بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور ہلکا سا دبایا۔ بیٹا، تم کمزور نہیں ہو، تم وہ ستون ہو جس پر یہ رشتہ کھڑا ہوگا۔ خود کو سنبھالو اور وقت کو موقع دو۔ جویریہ نے سر اٹھا کر پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کی گہرائی اور سچائی چھلک رہی تھی۔ اس نے لمحے میں فیصلہ کیا تھا، دل میں بدگمانی لانے کے بجائے وہ اپنے رشتے کو دوبارہ شروع کرے گی۔ جو ہو چکا ہے وہ اس بات کو سینے سے لگا کر نہیں بیٹھے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں کمرے کی روشنی مدھم سی جگمگا رہی تھی۔ نرم سا گلابی لباس جویریہ کے نازک وجود پر پرست رنگی خوابوں کی مانند کھل رہا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو پرکھ رہی تھی۔ میک اپ کی ہلکی طے اس کے چہرے پر نرمی اور معصومیت کا عکس بن گئی تھی۔ وہ اپنی پلکوں کو جھکاتی، دوبارہ اٹھاتی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی اندرونی امید کو تسلی دے رہی ہو۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، شاید آج کچھ بدل جائے، شاید فرحاد آج اس سے بات کرے، ایک نظر محبت سے دیکھے، شاید وہ خاموشی جو رات سے اس کے گرد لپٹی ہے آج ختم ہو جائے۔ وہ اسی امید میں تھی کہ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور فرحاد کمرے میں داخل ہوا۔ جویریہ کے چہرے پر بے اختیار خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ آئیے، آپ کا کوٹ۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے کوٹ لیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی، پھر واپس آ کر تھوڑا جھجکتے ہوئے شکوہ کیا، آپ کو بالکل میرا خیال نہیں آتا؟ صبح سے اب کا وقت ہو گیا ہے اور آپ نے ایک بار بھی پوچھا تک نہیں کہ میں کیسی ہوں، کھایا بھی ہے یا نہیں؟ خیر چھوڑیں، دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ معصومیت سے ہنسی، ذرا سا گھومی تاکہ فرحاد کو اپنا سراپا دکھا سکے۔ آنکھوں میں وہی پرانی چاہت، وہی خوابوں کی رمجھم لیے فرحاد نے محض ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی، جیسے وہ کوئی اجنبی منظر ہو جو عادت بن چکا ہو۔ کوئی حیرت، کوئی مسکراہٹ، کوئی تحسین نہیں۔ وہ بنا کچھ کہے سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے جویریہ کے دل پر لگ گئی ہو، اس کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی، ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے گرنے لگے، آنکھوں میں الجھن، دل میں چبھتی ہوئی اداسی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی جیسے وقت رک گیا ہو۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ دل نے بے قراری سے سوال کیا۔ وہ لمحہ بھر کو بستر پر آ کر بیٹھ گئی، نظریں دروازے پر جم گئیں اور یادیں ایک ایک کر کے دل کے پردے پر چلنے لگیں۔
जब वो रिश्ता देखने आया था कितनी गर्मजोशी थी उसकी आंखों में। माँ जी तो खुशी से मेरे हाथ थामे बैठी थी। हमारे फरहाद को तो यही लड़की पसंद आई है, बस सादगी और तहजीब हो तो लड़की दिल में उतर जाती है। उनके अल्फाज आज भी जहन में गूंज रहे थे और आज शादी के बाद सब कुछ बदल गया। दिल जैसे सिमटने लगा, आंखों की चमक मद्धम हो गई, अंदर एक बेचैनी सी पलने लगी थी। फरहाद का रवैया, उसकी खामोशी, वो सर्द लहजा सब जवेरिया के ख्वाबों को चटकने लगा था। वो जो इस रिश्ते को लेकर इतने जज्बे, इतनी खुशी सी आई थी, वो आज खुद को गैर महसूस कर रही थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई, सिर्फ शावर के पानी की आवाज़ बस पस मंज़र में दिखाई दे रही थी और जवेरिया की खामोश आंखें आईने में अपने अक्कास चेहरे को तक रही थीं, जैसे खुद से पूछ रही हूँ मेरी गलती क्या है। लेकिन गलती सिर्फ बुरे वक्त की थी जिससे कोई वाकिफ़ नहीं था। कमरे की मदहम सी रोशनी अब कदरे गहरी हो चुकी थी। दीवार गिर घड़ी रात के 11 बजने की नवीद सुना रही थी। माहौल में अजीब सी सर्द महरी थी, जैसे वक्त भी सांस रोकर किसी तलख लम्हे के गुजरने का इंतज़ार कर रहा हो। जवेरिया खामोशी से बिस्तर के एक किनारे बैठी थी, दिल में एक अजीब सी कशमकश लिए, जिसका सिरा कहीं उसकी बेनाम बेचैनी से जुड़ा था। कुछ देर बाद वाशरूम का दरवाज़ा खुला और फरहाद सफ़ेद शलवार कमीज़ में बालों पर तौलिया रगड़ता हुआ बाहर निकला। उसने महज एक सरसरी निगाह जवेरिया पर डाली, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो, और सीधा जाकर बिस्तर पर बैठ गया। उसका रवैया अब भी वैसा ही सर्द था, जैसे दिल में कोई तूफ़ान हो या जैसे वो किसी अनजाने बोझ तले दबा हो। जवेरिया ने चंद लम्हे इंतज़ार किया, फिर कोई सोचकर आहिस्ता से उसके पैरों में आ बैठी। उसके दिल में बार बार उठने वाले सवालात अब ज़बत की हदें पार करने लगे थे। वो हिम्मत जमा करके थोड़ा सा करीब हुई और नरमी से उसका हाथ थाम लिया। फरहाद, उसकी आवाज़ बहुत धीमी, बहुत सहमी हुई थी। मुझसे कोई गलती हुई है क्या, जो आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? शादी को पूरा एक दिन गुजर गया, लेकिन आपने एक दफ़ा भी मुझे नज़र भरकर नहीं देखा, ना कुछ कहा, ना कुछ पूछा। वो अब अपनी तकलीफ़ छुपा नहीं पाई थी। वो कोई 30 से 32 साल की औरत नहीं थी, बल्कि 20 साल की एक मासूम लड़की थी, जिसकी आंखों में आम लड़कियों की तरह ही ख्वाब थे कि उसका शौहर उसको सराहे, उससे प्यार करे, उसे मोहब्बत के दो बोल बोले। मगर यहाँ तो मामला ही उल्ट था। वो बात करते करते रुक गई, आंखों में नमी सी चमकने लगी। फरहाद ने एकदम अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई, जैसे किसी नामालूम जहर ने उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ा दी हो। अगले ही लम्हे वो झटके से अपना हाथ छुड़ा गया, जैसे इस लम्हत से उसे नफरत हो। तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो। उसकी आवाज़ सख्त, काटदार और सर्द थी। और आइंदा अगर तुमने बगैर इजाज़त मेरे हाथ को छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवेरिया के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। उसके अल्फाज, उसका लहजा, सब कुछ एक ताज़ियाने की मानद उसके दिल पर लगा था। वो साकत रह गई, सांसें जैसे कहीं अटक गई हों, आंखें फटी की फटी रह गईं। खबरदार, अपनी हद में रहना सीखो। वो बोलते हुए बिस्तर पर लेट चुका था और अगले ही लम्हे आंखें बंद करके सोता बन गया, जैसे कुछ कहा ही ना हो, जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक दीवार हो। जवेरिया का वजूद जैसे ज़मीन में धंस गया हो। वो देर तक उसके चेहरे को देखती रही, जो अब नींद की मसनूई पर्दापोशी में छुपा हुआ था। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू थे, दिल में टूटते सवाल और रूह पर एक ऐसी खामोश अजियत जिसे लफ्ज़ों में ढालना मुमकिन नहीं था। वो आहिस्ता से पीछे हटी और बिस्तर के दूसरे किनारे बैठकर खामोशी से सिसकने लगी। रात की खामोशी में सिर्फ उसकी दबी दबी सिसकियाँ थीं। रात की गहरी खामोशी अब जवेरिया के अंदर भी उतर चुकी थी। वो बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी, निगाहें कहीं खिला में गुम थी, सांसें बेतरतीब और आंखों से आंसू मुसलसल बह जा रहे थे। वो अब भी वहीं बैठी थी जहाँ फरहाद ने उसे झिड़क कर खामोश कर दिया था। उसका वजूद सुन्न हो चुका, जैसे किसी ने अंदर ही अंदर से ज़िंदगी निचोड़ ली हो। अम्मी ने कितने ख्वाब दिखाए थे, वो आहिस्तगी से बड़बड़ाई, जैसे खुद से मुखातिब। वो कहती थी, शौहर के लिए सजदे की तरह झुक जाना, उसका हर हुक्म मानना, हर बात पर सर झुका देना, तभी घर बसेगा। वो फूट फूट कर रोने लगी, दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। पर अम्मी, मेरा शौहर तो मुझे देखना भी गुनाह समझता है। उसका लहजा, इसकी नज़रों की बेरुखी, ऐसा सलूक तो दुश्मन से भी ना हो। उसकी सिसकियाँ अब तेज़ हो चुकी थी, दिल में जैसे बरसों की थकन उतर आई हो। या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया? इंटर पास हूँ तो क्या, दिल तो मेरा भी है, ख्वाब तो मेरे भी थे, मोहब्बत, इज़्ज़त, चाहत, ये सब मेरा भी तो हक था। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? वो अपने रब से शिकवा कर रही थी, जैसे इस दुख की गवाही भी उसी के हुजूर दे रही हूँ। वो थक चुकी थी रो रो कर, शिकवे कर कर के। सब कुछ दिल से निकाल कर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने आंखें साफ की, हल्का सा पानी पिया और एक गहरी सांस लेकर खामोशी से बिस्तर पर लेट गई थी। आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। रोते रोते वो कब नींद में गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह तो जैसे ख्वाब की तरह आई थी। आंखें खुली तो फरहाद का वजूद कहीं नहीं था। बिस्तर खाली, कमरा वीरान। वो परेशान होकर नीचे आई थी। जब निसा बेगम से इस्तफसार किया,
तब ज़ेबुन्निसा बेगम ने नरमी से कहा, फरहाद तो सुबह सवेरे ही निकल गया, उसे अस्पताल के काम होते हैं, तुम अपना ख्याल रखा करो। उसने महज गर्दन ही हिलाई थी, मगर दिल में सवालात ने सर उठा लिया था। कहाँ जाता है इतनी सुबह, किस काम में इतना मसरूफ़ है कि बीवी से बात करने का वक्त भी नहीं, और इतनी बेरुखी ये बात उससे बिल्कुल सुकून लेने नहीं दे रही थी। वो भी एक आम ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, मगर अब उसे कुछ भी ठीक होता महसूस नहीं हो रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो चुका था, मगर इस दौरान वो चंद फैसले ले चुकी थी। अपना घर वो इस तरह बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने खुद से अहद किया था जैसे किसी जंग में जाने से पहले सिपाही हथियार बांधता है। अम्मी ने कहा था ना, लड़कियां ही घर बसाती हैं, तो फिर मैं कोशिश करूँगी, बर्दाश्त भी करूँगी, मगर मैं ये जान कर रहूँगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। वो उठकर आहिस्ता से आईने के सामने आ खड़ी हुई, आंखों में थकी थकी नमी, मगर चेहरे पर अब फैसला चमक रहा था। कल, हाँ कल मैं खामोश नहीं बैठूंगी। और वो इस बात से बिल्कुल लाइलम थी ये उसका फैसला उसके लिए कितनी बड़ी आजमाइश बनने वाला है। रात भी उसने ऐसे ही लाइलमी का इजहार किया था, मगर वो कुछ नहीं बोली थी। कमरे की खिड़की से सूरज की सुनहरी किरणें कालीन पर धीरे धीरे फैल रही थी। दीवार गिर घड़ी ने 9 बजने की तला दी तो जवेरिया की समात में हल्की सी चमक पैदा हुई। वो लिहाफ में मुंह छुपाए लेटी थी, मगर आंखें पूरी तरह खुली थीं। उसने एक झलक फरहाद को देखा, जो तैयार हो चुका था। साफ सुथरा कोट, सलीके से सजे बाल, खुशबू से महकता वजूद। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों को हथमी शक्ल दे रहा था। फिर घड़ी पे नज़र डाली और बगैर किसी नज़र डाले या लफ्ज़ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जवेरिया की धड़कन तेज़ होने लगी। उसने अपनी सांसें काबू में रख कर खुद को सोती हुई जाहिर किया। दरवाज़ा खुला, फिर आहिस्तगी से बंद हुआ। वो जा चुका था। अगले ही लम्हे वो लिहाफ एक झटके से परे फेंक दी, तेज़ी से चादर उठाकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, घर की आम चप्पल उसने दरवाजे के करीब से पहनी थी। हाथ से दुपट्टा संभालती वो सीढ़ियाँ फलांगती नीचे आई। गेट के पार वो दूर जाती फरहाद की गाड़ी को देख सकती थी, जो सड़क पर मुड़ रही थी। उसने बिना वक्त ज़ाया किए बाहर की तरफ लपक करीब आते एक रिक्शे को हाथ दिया। रिक्शा फ़ौरन रुक गया। भाई उस गाड़ी के पीछे चले। अब है सियाह रंग की कार। फ़ौरन उसकी आवाज़ में जल्दी और एक अनजानी कपकपाहट थी। ड्राइवर ने कुछ पूछे बगैर रिक्शा को और वो कार के पीछे चल दिए। जवेरिया ने जल्दी से चादर अच्छी तरह लपेटी और सांसें दुरुस्त की। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा उठा लिया हो। सड़क पर फरहाद की गाड़ी बहुत मज़ब रफ्तार से जा रही थी। जवेरिया की नज़रें गाढ़ी थी, जैसे वो उसके पीछे उसके राजों को तलाश करने निकली हो। वो दिल में सोच रही थी, आज मैं जान कर रहूँगी कि इसके के पीछे क्या राज है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्यों मुझ इतनी अजनबी सा सलूक करता है, वजह आखिर क्या है। घर से बाहर झांकते हुए उसने नज़रों में अब खौफ नहीं था, तजस्सुस से एक अजीब सा हौसला था। गलियां, सड़कें, दुकानें पीछे रहती जा रही थीं और सामने फराह की गाड़ी थी, जैसे वो उसके दिल तक पहुंचने की आखिरी कोशिश की हो। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, दिल में कहा, जो मेरे नसीब में है उसे समझना और संवारना भी मेरा है। रिक्शा भी आहिस्ता हो चुका था। मुख्तसर मुसाफत के बाद क्लिनिक के सामने गाड़ी एक झटके से रुकी और फराह तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। जवेरिया ने अपने रिक्शे को किराया दिया, एक नज़र उस शीशे के दरवाजे पर डाली जिसकी खानज़ादा क्लिनिक की नीम रोशन तख्ती लटक रही थी, और फिर गहरा सांस भरकर बढ़ी। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे सर से पैर तक देखा, मगर चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया। शायद उसकी आंखों में छुपी वकार, लिबास की नफासत और अंदाज की शाइस्तगी ही काफ़ी थी ये बताने के लिए कि किसी मामूली घर की बेटी नहीं। क्लिनिक अंदर से मुख्तसर मगर साफ था। एक तरफ छोटा सा रिसेप्शन डेस्क, जिसके पीछे हल्के लिबास में बैठी रिसेप्शनिस्ट थी, और सामने लड़कियां मुंतज़िर कुर्सियों पर बैठी थी। जवेरिया खामोशी से आहिस्ता कदमों से उनके आई और खाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके दिल की धड़कन मामूल से कहीं ज़्यादा तेज़ थी, जैसे हर धड़कन नीयत का राज फाश कर रही। वो नज़र उठाकर इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। निगाह एक लड़की पर ठहर गई। वो उम्र में उससे काफ़ी छोटी रही थी, बमुश्किल 16 या 17 बरस की। रंग गोरा, आंखों में घबराहट और अंदाज कुछ असहमा हुआ, जैसे वो किसी अनजाने खौफ के में हो। उसका लिबास आम सा था, मगर चेहरे पर एक बला की मासूमियत थी, देखने वाले को पलक झपकाना भुला देती। जवेरिया ने उलझन से उसे देखा। दिल में कई सवाल उभरने लगे थे, मगर लगे हुए थे। वो कुछ कहना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि ये लड़की कौन है, यहाँ क्यों है, क्या फरहाद के इस अजनबियत भरे रवैये ताल्लुक इसी से है, लेकिन उसके पास भी सवाल का जवाब मौजूद नहीं था। चंद लम्हे बाद रिसेप्शन की टेबल के पीछे आवाज़ आई, आयशा बीबी, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, अंदर चली जाएं। उस लड़की ने एक लम्हे को नज़रें उठाकर रिसेप्शनिस्ट की तरफ हल्की सी हाँ गर्दन हिलाई और आहिस्तगी से खड़ी हुई। उसकी चाल में कुछ ऐसी झिझक थी जैसे कदम ब कदम खौफ लिपटा हो। जवेरिया ने गौर से उसे देखा। उसके दिल में जैसी चिंगारी सी चमकी। शक और हैरत ने मिलकर उसके वजूद को झंझोड़ था। वो पलकें झपकाए बगैर उस दरवाजे को तकती रही जिसके पीछे फरहाद बैठा था, और अब उसके सामने लड़की जा रही थी।
हर कदम के साथ एक नया सवाल, एक नई चुभन लेकर। ये सब क्या है? कलीना कितना बड़ा नहीं था, बाकायदा एक कैबिन बनाया जाता, लेकिन कुछ तो थी जो उसे अंदर तक महसूस हो रही थी। खामोशी गहरी हो चुकी थी, लेकिन जवेरिया के तूफान बरपा था। वक्त जैसे थम सा गया था, दीवार पर लटकी घड़ी की सुइयां हरकत तो कर रही थी, फिर जवेरिया को महसूस हो रहा था जैसे वो एक ही जगह पर जमी हुई है। बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर उस कुर्सी की तरफ जहाँ वो लड़की बैठी थी, और अब कई मिनट अंदर जा चुकी थी। उसके दिल की धड़कन मुसलसल बढ़ती जा रही, वो लम्हा लम्हा बेचैन हो रही थी। आखिर वो लड़की इतनी देर से क्या कर रही है? यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। मजीद बर्दाश्त से होकर वो धीमे कदमों से रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। वहाँ मौजूद लड़की ने नज़र उठाकर उसे देखा तो जवेरिया ने नरमी मगर बेचैन से पूछा, वो लड़की अभी तक बाहर नहीं आई? इसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एक लम्हे के लिए सुन सा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक और घबराहट उभरी। वो सीधी होकर बैठ गई, फिर कदरे सख्त लहजे में बोली, आपको इससे क्या मतलब? आप ये सवाल क्यों कर रही है? जवेरिया का चेहरा एक लम्हे को शर्मिंदगी में झुक गया, मगर वो फौरन संभल गई। नहीं, मेरा मतलब है काफ़ी देर हो गई है। नंबर कब आएगा? रिसेप्शनिस्ट की नज़रें उस पर मरकूज हो गईं। फिर जैसे कुछ याद आया हो, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, आपका क्या है? चंद लम्हे खामोश रही थी और फिर सर झुकाकर बोली, मेरा नाम जवेरिया है। रिसेप्शनिस्ट ने सर को हल्के दी और कंप्यूटर पर उंगलियां चलाई थी और चंद लम्हे बाद उसको देखते हुए बोली थी, लेकिन मैडम आपकी तो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है, आपका लिस्ट में नहीं है, आप तो जा भी नहीं सकती। जवेरिया चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, दिल में सवालों का तूफान बरपा। वो अपने अंदर की बेकरारी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर आंखों की बेचैनी छुपी न सकी। फिर भी वो आहिस्ता से बोली, वो अंदर क्या कर रही है? इतना वक्त क्यों लग रहा है? उसकी आवाज़ में शक की आमेजिश थी, आंखों में इज़्तिराब और लहजे में किसी कपकपाहट। रिसेप्शनिस्ट ने अब कदरे सख्ती से उसे देखा। मैडम प्लीज़, आप यहाँ इस तरह सवाल नहीं कर सकती। अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं तो मेहरबानी करके बाहर चली जाएं। ये कहकर वो नज़रें फेर कर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में मसरूफ़ हो गई। जैसे बात ख़त्म हो चुकी, चंद लम्हे वो वहीं खड़ी रही और फिर वो दरवाजे से बाहर निकली। कदम भारी हो चुके थे, दिल में सवाल थे, बेयकीनी थी और एक गहरा खदशा जिसने वजूद को जकड़ लिया था। वो लड़की, वो खामोशी, वो वक्त और फरहाद, सब कुछ एक उलझी हुई कहानी में बदलता जा रहा था। घर वापस आकर एरिया ने कमरे की दीवार को थाम कर उसे संभालने की कोशिश की। उसके दिमाग में बेशुमार ख्यालात भटक रहे थे। वो सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर सब कुछ उलझता जा रहा था। वो बिल्कुल गाड़ी से उतर चुकी थी और उसका दिल धड़क रहा था जैसे बेसुकूनी हो। उस लड़की का इतने वक्त तक इधर रहना और फिर कोई जवाब ना मिलना, ये सब कुछ उसकी समझ बाहर था। एक सवाल मुसलसल उसके दिमाग में गूंज रहा था, क्या फरहाद की ज़िंदगी में कुछ और था? क्या उसके अंदर कुछ और राज छुपे थे? वो बिना होकर अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र पड़ी जो जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। उनकी पुरसकून सूरत और इबादत की हालत जवेरिया का दिल कुछ नरम पड़ा, मगर उसका दिल गहरी उलझन में भरा हुआ था, वो जो चाह कर भी नहीं पा रही थी। चंद लम्हे वो खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बैठ गई। ज़ेबुन्निसा बेगम ने नमाज़ मुकम्मल की और अपनी आंखें खोली तो निगाहें जवेरिया पर रुक गईं। बेटा क्या बात है? उन्होंने नरम लहजे में पूछा, कोई परेशानी है? उसने गहरा सांस लिया और फिर बहुत संजीदा अपने खौफ और उलझन को सामने रखते हुए कहा, अम्मी एक बात तो बताएं, क्या फरहाद मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या वो किसी और चीज़ में मुलव्वस थे? यानी क्या वो किसी और को पसंद करते हैं? उनकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी दिखी। उन्होंने कुछ लम्हे जवेरिया को गौर से देखा, फिर अचानक बोली, बेटा तुम ये क्या सवाल पूछ रही हो? उन्होंने धीरे से कहा, सब कुछ ठीक है, तुम कहीं गई थी? जवेरिया ने सरनफी में हिलाते हुए अपनी आंखों में शकूक का समंदर समोए हुए कहा, नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं। बस बताना, क्या फरहाद किसी और को पसंद करते हैं? और हाँ, वो किसके डॉक्टर हैं? ज़ेबुन्निसा बेगम ने जवेरिया को एक टक देखा, फिर गहरा सांस लेकर नरम आवाज़ में जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फरहाद स्कैन का माहिर डॉक्टर है और वो किसी को पसंद नहीं करता। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मगर वो महज सरनफी में हिलाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और कमरे की जानिब पड़ी थी, इस बात से बेखबर कि एक यही बात स्कैन डॉक्टर को किस राज से आशना करने वाला था। खामोशी की एक दबेज चादर थी। घड़ी की सुइयां रात 10 बजने का ऐलान कर रही थी। जवेरिया का दिल
दिल की धड़कनें शिद्दत से तूफान की जद में थी। वो सुर्ख रंग के नफीस लिबास में हल्का सा मेकअप किए पलकों पर उम्रों का साया लिए बिस्तर पर बैठी थी। उसने सोच लिया था मोहब्बत का आगाज एक बार वो जरूर करेगी, उसके बाद ही हकीकतों से पर्दा हट जाएगा। मगर जानते ही नहीं थे कैसा आप उसका मुंतजिर है। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा चरचराता हुआ और फरहाद अंदर आया। एक लम्हे की ताखीर किए बगैर वो उसकी तरफ बढ़ी। दिल की तमाम हिचकिचाहट और खौफ को एक तरफ रख कर उसकी गर्दन में बाहें डालकर खड़ी रही, जबकि वो हैरान होकर उसकी बेबाकी देख रहा था। फरहाद, मुझे मेरा हक चाहिए, मैं बीवी हूँ आपकी। उसका दिल पल भर में घूमा था और एक जोर थप्पड़ उसके मुंह पर किया था, जिसकी ताब ना लाते हुए वो उस पर ही जमीन बोस हो गई थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक औरत होकर गिरी हुई बात कर रही हो। मैं मर्द होकर खामोश हूँ और तुम इतनी बेगैर हो चुकी हो। मैंने क्या गलत कहा? वो सिरे हुए बोली, शादी को एक हफ्ता हो गया, कितना इंतज़ार करूं? हर औरत की तरह मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ ख्वाब हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनाएं, चाहें, बस इतना ही तो कहा कि आप अपना मर्द है। फरहाद का चेहरा हो गया था, इस बात की उसे बिल्कुल नहीं थी। वो करीब आया और झुक कर उसके इशारा करते हुए गुस्से से था, क्या तुम मेरे किरदार पर शक कर रही हो? दिमाग है तुम्हारा? अपनी औकात में रहो, वरना अभी के अभी तलाक दे दूंगा, फिर तुम्हें हो जाएगा कि मैं मर्द हूँ या ना मर्द। वो बोल कर डरा नहीं था, बल्कि लंबे डग भरता हुआ कमरे से चला गया था। लाल लिबास अब से ज्यादा अजीज अलामत बन चुका था। दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या बीवी होना वाकई जुर्म है? लेकिन इस सवाल जवाब उसके पास नहीं था। रोज उसने खामोशी से गुजारे थे और फिर अम्मा की तरफ चली गई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। सड़कें सुनसान थी, मौसम में हल्की खनकी बाकी थी, मगर जगह के अंदर एक तूफान बरपा। वो माँ के घर से सुबह ठीक 8 बज ली थी। चेहरे पर पुरअज़म में सवाल और कदमों में फैसला आ रहा था। इस थप वो नहीं भूल सकती थी जो महज एक हफ्ते बाद उस चेहरे पर रसीद किया गया था। आज वो हर हाल में सच जानना चाहती थी। उसका रुख सीधा उसी की तरफ था जहाँ वो पिछले हफ्ते ट्रेन लिए वापस आई थी। न जाने की हर कड़ी वहीं से दी हुई महसूस हो रही थी। क्लिनिक पहुंची, लेकिन ताला लगा हुआ था। वो एक कोने में खड़ी हो गई थी। वक्त जैसे सुस्त रवि चल रहा था, हर गुजरता लम्हा उसे मजीद बेचैन कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद दूर से एक नस्वान वजूद नमूदार हुआ, वही रिसेप्शन पर बैठी लड़की जिसके हाथ में चाबियां। जैसे ही वो क्लिनिक के दरवाजे के करीब पहुंची, जवेरिया तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। रिसेप्शन ने उसे अजनबी निगाहों से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो रस्मी में बोली। जवेरिया पल को उसकी आंखों में झांक, फिर लब खोए, मिसिज फरहाद हूँ, आपके बॉस की बीवी। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का एक पल को बदला। वो चूंकी और फिर कदरे संभल बोली, ओह जी मैम, फरमाइए, मैं कर सकती हूँ आपके लिए? जवेरिया ने कदम आगे बढ़े हुए संजीदा लहजे में कहा, आपसे कुछ ज़रूरी बात नहीं है, तफसीली बात, और अगर आपको अपनी नौकरी अजीज़ है तो बेहतर है कि मेरी हालत का जवाब सच्चाई से दें। अगर आपने कुछ भी छुपा या इनकार किया तो याद रखना ये आपकी नौकरी का आखिरी दिन होगा। रिसेप्शनिस्ट ने हिचकिचाते हुए करीना दरवाज़ा खोला, कुंजी को घुमाया, वाला की आवाज़ से खुला। हाथ कांप रहे थे और पेशानी पर हल्की पसीने की तह चमक रही। आइए मैं अंदर चलते हैं। उसने सर हिला क्लिनिक के अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। एरिया उसके पीछे पीछे चली। अंदर वही खामोश सा माहौल, छोटा सा रिसेप्शन एरिया, दीवार पर लगे और कैबिन की तरफ जाता हुआ दला। हर अपनी जगह मौजूद थी, मगर जवेरिया की निगाहों में फ़कत की तलाश थी। रिसेप्शनिस्ट ने एक तरफ बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गई, मगर बेचैनी उसके चेहरे से अयां थी। जवेरिया ने गहरी सांस ली और लहजे में बोली, मेरा नाम जवेरिया फरहाद है, मैं आप बॉस की बीवी हूँ। मुझे आपसे कुछ अहम सलाहत करनी है और मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगी। वो एक बार फिर तमही बांध कर बोली थी। रिसेप्शन ने घबरा कर उसे देखा, पलकें चंद लम्हे लर्जी, फिर धीरे से बोली, मैडम, मेरी ज़ात जितना हो सकेगा मैं आपके साथ तावन करूँगी। आप पूछिए क्या है? जवेरिया ने गहरी सांस से नजरें रिसेप्शनिस्ट की आंखों में गाड़ते हुए पूछा, आपके डॉक्टर साहब या मेरे शौहर तो का चेकअप क्यों करते हैं, और वो भी इतनी देर लगाकर? आखिर इसके पीछे क्या राज है? एक लम्हे को रिसेप्शनिस्ट का चेहरा फीका गया। वो कुछ ही वाली थी, मगर रुक निगाहें झुकाते हुए बोली, मैडम, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, ये मेरी मुश्किल खड़ी कर देगा। सर बहुत सख्त है। जवेरिया का लहजा एकदम सर्द और तल्ख हो गया। अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो ज़्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि जहां आपकी नौकरी लगी रहे तो खुदा के लिए मेरे साथ ताउन करें, वरना जानती है ना मैं क्या कर सकती हूँ। रिसेप्शनिस्ट की सांस उखड़ने लगी। वो नज़रें चुराते हुए थोड़ा सा पीछे बैठ गई। चेहरे पर कशमकश के आसार थे। मैडम, सर बहुत प्राइवेट आदमी हैं, अगर उन्हें ज़रा भी शक हुआ कि मैंने कुछ बताया है तो वो मुझे फ़ौरन निकाल देंगे। जब लहजा एकदम नरम हो गया, आंखें भर आई, मदा करती हुई, ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी, खुदा के लिए मेरी मदद करो।
मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा शौहर मुझसे दूर होता जा रहा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ तो बताओ। आखिर वो वहाँ अंदर औरतों के साथ इतना वक्त क्या कर रहे हैं? मुझे मेरा बचाना है, मेरे पास माँ बाप या भाई का सपोर्ट नहीं है, तलाक लेकर अलग हो जाऊँ। कम अज़ कम मुझे कुछ तो पता चले ताकि मैं अपने रिश्ते की बुनियाद मजबूती से रखूँ। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी और आंखों में सच की तड़प। रिसेप्शनिस्ट की आंखें चंद लम्हे रहीं, जैसे वो किसी अंदरूनी जंग से गुजर रही हो। उसने धीरे से सर उठाया। आप वादा करें कि ये बात वाकई हम दोनों के दरमियान रहेगी, ना आप सर को बताएंगी ना किसी और को। जवेरिया ने बेख्तियार सर हिलाया। मैं वादा करती हूँ, खुदा की कसम किसी को नहीं बताऊंगी, बस मुझे सच जाना है। रिसेप्शनिस्ट ने एक लंबी सांस ली और नज़रें दाएं बाएं घुमाकर कमरे की सनसनी का जायजा लिया। ठीक है मैडम, मैं आपको सब बता दूंगी, मगर आपको संभाल कर सुनना होगा, क्योंकि बात वैसी नहीं जैसी आप सोच रही हैं मैडम। सरफराज बहुत एरोगेंट डॉक्टर थे, आंखों में ऐसा गरूर जैसे दुनिया की हर चीज़ उनके मुंह में हो। बात बात पर खफा हो जाते, किसी से सीधी तरह बात तक नहीं करे थे। मैंने जब नौकरी शुरू की थी तब वो एक बड़े अस्पताल में थे, वहाँ के सीनियर स्टाफ भी इनसे दबते थे। जरिया खामोशी से सुन रही, आंखों में सवाल और दिल में धड़कन तेज हो रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने बोलना जारी रखा, फिर अचानक उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया, जहाँ ये छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। शुरू में तो मरीज कम आते थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी शोहरत बढ़ने लगी। वो बहुत अच्छे से चेकअप करते थे, पूरे ध्यान से, जैसे किसी चीज़ को गहराई में जांचते हो। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एक लम्हे को संजीदा हुआ, आवाज़ धीमी हो गई। लेकिन फिर एक दिन, वो दिन आज भी मुझे याद है। एक लड़की आई थी, नकाब में लिपटी हुई, यादगार, बिल्कुल खामोश सी। उसका नाम सादिया यूब था। शक्ल से शरीफ और मासूम लगती थी। सर ने उसकी फाइल की, उसे देखकर न जाने क्यों ठठक गए। वो कोई आम मरीज़ा नहीं लग रही थी उनके लिए। उसे किडनी के दर्द की शिकायत थी, मगर उनकी फाइल देखकर साफ रहा था फिलहाल अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं। मगर इसके बावजूद सर ने उनका अल्ट्रासाउंड करवाया। जवेरिया का दिल से सीने में रुकने लगा। उसने थोड़ा चल पूछा, फिर क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट ने नज़रें चुरा कर कहा, सर ने मुझे एकदम से कहा कि मरीज़ को अल्ट्रासाउंड में ले जाओ। मैं चूक गई। मैंने फाइल देखी तो उसमें ऐसी हिदायत नहीं थी, मगर सर के हुक्म की नाफरमानी की बात मुझ में नहीं थी। मैंने उनकी मान ली। सादी खामोशी से मेरे साथ चल दी। वो भी हैरान थी, लेकिन कुछ नहीं। एक लम्हे वो रुक गई, जो अल्फाज गले में अटक गए हों। यानी उसका हाथ थाम कर धीरे से कहा, आगे क्या हुआ? सब सच बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार। रिसेप्शनिस्ट ने एक गहरा सांस लिया, जैसे कोई भारी बोझ उतार रही हो। मैंने अल्ट्रासाउंड रूम में लेकर गई। सादिया बहुत सहमी हुई लग रही थी। जब थोड़ी देर बाद सर खुद आए तो मैं वाकई परेशान होगी। मुझे लगा था कि अल्ट्रासाउंड तो मैं करूँगी, हमेशा यही होता था, लेकिन उस दिन सब कुछ अदला बदला सा था। मेरिया ने गहरी सांस लेकर से गौर से सुनने ली। वो धीरे से बोली। सादिया ने फौरन पर्दा गिरा लिया था। वो घबरा कर बोली थी, आपसे अल्ट्रासाउंड नहीं करवाऊंगी, हयादार लोग हैं, लेडी डॉक्टर चाहिए। उसके लहजे में अजीब सी सख्ती और डर था। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया, फिर आंखें बंद कर इसे मंजर याद कर लगी। तब आपके शौहर सरफराज ने बड़ी नरमी से, बड़े मुहज्जब लहजे में उसे समझाया। उनका अंदाज एक मसीहा जा था। वो कह लगे, डॉक्टर एक मसीहा होता है, एक डॉक्टर पर्दा जायज़ नहीं है। हम तो इलाज करते हैं, नीयत पर खुदा लगता है। उनकी बातें इतनी मुदल्लल थी कि सादिया खामोश हो गई। बहुत मुश्किल राजी हुई और सर ने मुझे वहाँ से जाने का इशारा किया। जवेरिया ने बेचैनी से अपना हाथ मुट्ठी बंद किया। आवाज़ धीमी हो गई, और तुम बाहर आ गई? रिसेप्शन ने आह भरी, जी मैडम। वो पहला दिन था, फिर तो ये मामूल बन गया। सादिया अक्सर आने लगी, हफ्ते 1 या 2 बार, कभी कब का बहाना, कभी हवा का। आती सीधी अंदर जाती, घंटों बैठ मैं और बाकी स्टाफ हैरान होते थे। वो सर के आगे कोई बोलने की जरूरत नहीं करता था। जवेरिया का दिल किसी ने मुट्ठी में लिया हो। आंखों में नमी तैरने लगी। पहले वो मुकम्मल पर्दाती थी, बुर्का, निकाब, सब कुछ, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो दुपट्टा लेकर आने लगी। आप लगता था बदलाव से वीज़ा का नहीं रहा, कुछ और। सर के कमसी, सरगोश, भीड़, मुलाकात, सब देखकर आंखें थे। क्यों नहीं इजाज़त ने हम सर के हाथ में अंदाजी कर रजते हुए पूछा, फरहाद? वो कुछ थे। ने नजर के चेहरे पर चमक जा थी। सादिया आती थी जैसे कोई खुशी हो। नहीं कहते थे सब कुछ थी। वक्त धीरे गुजरा था। वो हफ्ते सब कुछ तब्दील हो कि सुबह ऐसी ही थी जैसे हुआ करती थी। माहौल, दवाइयों की महक, दरो दीवार हुई खामोश। मैं जैसा खोलकर अंदर हुई, लाफ मामराहात पैदर मौजूद, चेहरे पर संजी गहरी थी। जूं ही उन पर पड़ी, हर किसी बोले, आग बंद रहे, सब है साल है मुझसे भी किस्म बस नहीं। कल को साकर करीब जैसे धक गया। मैं फौरी, मैं अभी नहीं सकती।
मत करके आ जाए। चलो ठीक है बैठ जाओ, अभी लेकिन नहीं अंदर आएगी। मत आना, मैं खामोशी से सर हिलाकर बाहर वाली कुर्सी पर बैठ गई। दिल में एक बेचैनी सी उठ रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अभी मुझे बैठे कुछ ही वक्त गुजरा था कि दरवाज़ा खुला और सादिया अंदर आई। उसके अंदाज में वही बेबाकी थी जो पिछली बार मैं देख चुकी थी। हल्का दुपट्टा सर पर था और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। हेलो, उसने सरसरी सा सलाम कहा और बगैर रुके अंदर चली गई। मेरी नज़रें खुद ब खुद उसकी पुश्त से हटकर काउंटर पर पड़ी चीज़ों पर जा ठहरी। वहाँ एक शीशे की छोटी बोतल रखी थी, क्लोरोफॉर्म। मेरी सांस एक लम्हे को रुक गई। ये जहाँ क्यों है? मेरे जहन में फ़ौरन सवालात गूंजने लगे। दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। अंदर से हल्की बातों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे सरफराद और सादिया आपस में बात कर रहे हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें मद्धम हो गईं और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं कुछ देर तक जब में रही, फिर दिल में जबर करके धीरे से उठकर उनके कैबिन के दरवाजे तक गई। कदम कपकपाते थे और हाथ पसीने से भीग चुके थे। जैसे ही मैंने झुककर अंदर झांका, आंखें खुली की खुली रह गई। मंजर नाकाबिले यकीन था। सादिया कुर्सी पर बेहोश पड़ी थी, उसके दुपट्टे का पल्लू ज़मीन पर था और सरफराद उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके साथ गलत कार्य में मसरूफ़ थे। मैं फ़ौरन दरवाजे से हट गई। दिल में जैसे किसी ने बर्फ़ डाल दी हो। मैं वापस अपनी जगह पर आ बैठी, मगर जिस्म कांप रहा था, दिल की धड़कन बेकाबू थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सरफराद इतना गिर सकते हैं, मगर हम मुलाजिम थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वक्त गुजरता रहा और ठीक आधे घंटे बाद कलीने के खामोश सुनसान माहौल में अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सादिया तेज़ी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीर थी, दुपट्टा आधा सर से ढलक चुका था और कदम लड़खड़ा रहे थे। वो मुकम्मल तौर पर बिखरी हुई लग रही थी, जैसे किसी तूफान ने उसकी रूह तक छीन ली हो। उसके पीछे ही डॉक्टर फरहाद आ रहे थे, शर्ट के बटन बंद करते हुए। चेहरे पर एक मकरूह सुकून और गरूर की झलक नुमायां थी। सादिया ने मुड़कर उसे देखा। आंखों में नफरत, दुख और बेबसी का तूफान था। आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर अल्फाज सीधे दिल पर वार करने वाले। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो चीखी। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपने मेरा यकीन, मेरी इज्जत, सब कुछ रोंद डाला। क्या मिला आपको ये सब करके? डॉक्टर फरहाद चंद लम्हे उसे देखते रहे, फिर एक ज़ोरदार कहका मारा। हंसी में शर्म नहीं बल्कि बेहिसी छुपी थी। तुमने खुद मुझे लिफ्ट करवाई थी, याद है? वो नज़र, वो मुस्कुराहट, सब कुछ खुद किया। अब जब मैंने तुम्हें वैसा ही जवाब दिया तो ये ड्रामे क्यों? वो उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए तंजिया बोले। सादिया ने एक कदम पीछे हटकर खुद को संभाला। आंसू बहते रहे, मगर अल्फाज में अब करब के साथ बद्दुआ शामिल हो चुकी थी। खुदा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा डॉक्टर फरहाद। ये एक दुखी दिल की बद्दुआ है, एक औरत की बद्दुआ। खुदा आपको बेटी दे और फिर आप खुद अपनी बेटी को उसी हाल में देखें जैसे आपने मुझे छोड़ा है। देखना, आपकी आंखों में भी यही आंसू हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो पलटी और दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकल गई। उसकी चप्पल की चाप, उसके कदमों की बेतरतीबी और उसकी रोती हुई आवाज़ क्लीनिक की खामोशी में गूंजने लगी थी। कमरे में कुछ लम्हे के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया। डॉक्टर फरहाद वहीं खड़े रहे, उनकी आंखों से हंसी गायब हो चुकी थी। चेहरा एक लम्हे को सख्त और संजीदा हो गया, जैसे सादिया के अल्फाज दिल के किसी कोने में जाकर ठहर गए। मगर अगले ही लम्हे कलीना की खामोश फिजा को एकदम उबरती चीखों पुकार ने चीर डाला। बाहर से किसी के शोर मचाने, गाड़ी के ब्रेक लगने और फिर एक दर्दनाक चीख की आवाज़ गूंजी। मैं और डॉक्टर फरहाद दोनों बेख्तियार दौड़ते हुए बाहर निकले। सामने सड़क पर भीड़ जमा हो चुकी थी और ज़मीन पर खून में लथपथ जिस्म पड़ा था। वो सादिया थी, किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया था और अब वो बेजान पड़ी थी और इसी पल मर गई थी। एक्सीडेंट इत्तफाकी हुआ था या फिर वो खुद गाड़ी के आगे आई थी, आज तक इस बात का राज खुला नहीं, मगर मैंने इस पर डॉक्टर फरहाद को पत्थर होते हुए देखा था। वो दीवाना वार सादिया की तरफ भागे थे, लेकिन सब कुछ बेकार गया था। वो उसी पल मर गई थी और अपने साथ साथ डॉक्टर फरहाद की सारी खुशियाँ ले गई थी। मैं भी सकते में आ गई थी। लोगों ने बताया कि वो सड़क अबूर कर रही थी जब गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो मौका पर ही दम तोड़ चुकी थी और मैम, ये अल्फाज गोया खंजर थे जो मुझे भी अपने दिल में पेवस्त होते हुए महसूस हुए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को मैं रोज़ देखती थी वो मर चुकी है। न जाने क्यों एक अनजान ऐसा दर्द मुझे भी हुआ था। इसकी तमाम बातें सुनकर जवेरिया भी साख्ता अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, जैसे किसी ने उसके जिस्म में बिजली भर दी हो। चेहरा बेयकीनी और उलझन से भरा हुआ था, मगर वो मज़ीद बोली थी। उस दिन के बाद मैंने सरफराद को बदलते देखा। वो नहीं रहे जो पहले थे। उनकी आंखों में एक मुस्तकिल शर्मिंदगी, एक निदामत छुपी होती है। वो औरतों का इलाज आप मुफ्त करते हैं, जो पैसे आते हैं वो सिर्फ अस्पताल की ड्यूटी से होते हैं, क्लिनिक सिर्फ खिदमत के लिए है। उसने गहरी सांस ली और थोड़ा और करीब होकर बोली, खुदा ने उनके हाथों में अब ऐसी शिफा रख दी है कि दूर दराज से मरीज़ आते हैं और वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। शायद सादिया की बात दुआ ही थी, शायद ये उनका कफ़ारा है, मगर अब वो पहले जैसे नहीं रहा। जवेरिया की आंखों में एक अजीब सा एहसास हो रहा, शायद वो अंदर ही अंदर उलझ रही थी। वो मज़ीद बोली, हो सकता है कि वो आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हों। वो जो आपसे कतराते हैं वो दरअसल उस डर में है कि अगर उन्हें बेटी हुई तो कहीं वो भी वही सब ना देखें जो सादिया ने देखा। शायद वो खुद को सज़ा दे रहे हैं।
जवेरिया की आंखों में नमी तैरने लगी थी। उसके होंठ लरज रहे थे और वो बगैर कुछ कहे पलटी, पर्स उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल गई। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक बार मुड़कर कलीने की तरफ देखा, एक गहरी खामोश नजर। फिर वो सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गई, दिल में शदीद एक तूफान लिए, या शायद कुछ समझने की कोशिश में। और रिसेप्शनिस्ट वहीं दरवाजे पर खड़ी देर तक उसकी पुश्त को देखती रही कि शायद अब कुछ बदलेगा, मगर दिल में कहीं ना कहीं एक डर भी था कि अगर सर को पता चल गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। रात का सन्नाटा फरहाद के कमरे में फैला हुआ था और चांद की मध्यम रोशनी दरवाजे से टकरा कर कमरे में फैल रही थी। फरहाद दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसकी नज़रें बेहद थकी हुई और दिल में एक खास किस्म का दुख छुपा हुआ था। वो जैसे ही अंदर आया, नज़र उसकी जवेरिया पर पड़ी, जो बिस्तर पर बैठी हुई थी और काफ़ी इज़्तिराब में मुब्तला नजर आ रही थी। फरहाद ने मामूल के मुताबिक नज़र अंदाज करके वाशरूम जाने का इरादा किया, मगर इससे पहले जवेरिया तेज़ कदमों से उसके सामने आ गई। उसका चेहरा संजीदा था। फरहाद ने बेजारी से सर झटका था जब अचानक वो निहायत संजीदगी से बोली थी, सादिया कौन है? उसका लहजा निहायत संजीदा था। वो लम्हे भर को थम गया। उसका दिल अचानक तेज़ धड़कने लगा। वो सादिया का जिक्र नहीं चाहता था, लेकिन जवेरिया के सवाल ने जैसे उसकी चुप तोड़ दी थी। तुमसे मतलब? उसके लहजे में एक सख्ती थी, मगर अंदर से वो भी डर चुका था। सादिया का नाम उसके लिए एक दिल दहला देने वाली याद बन चुका था। वो अब इस बात का सामना नहीं करना चाहता था। वो वाशरूम जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही जवेरिया ने उसका रास्ता रोक लिया था। वो बिना कुछ कहे उसका हाथ थामते हुए उसे बिस्तर पर बिठा लिया। एक लम्हे के लिए अंदर से वो खौफजदा हुई थी, कहीं वो एक बार फिर उसको न झटक दे, मगर शायद अब वो खुद अपनी हालत से बेजार हो गया था। उसको बिस्तर पर बिठाने के बाद वो खुद उसके बराबर बैठ गई। आंखों में एक नरमी थी, जैसे वो फरहाद के दिल की हालत को समझ रही हो। वो उसकी जानब झुककर आहिस्ता से बोली, मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी में माजी में क्या हो चुका है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप जिंदा रहना छोड़ दें। लोगों से डरें, अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें। फरहाद ने अपनी नज़रें झुकाईं, जैसे वो इन अल्फाज का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। उसका दिमाग अब तक सादिया के वाक़े से बाहर नहीं आ सका था। मुझे मालूम है सादिया के साथ क्या हुआ था और उसके बाद आपने क्या फ़ैसला किया था। जवेरिया की आवाज़ में एक अजीब सी समझौते की मिठास थी। वो फटी फटी नज़रों से जवेरिया को देखने लगा। उसे वाकई हैरानगी हो रही थी कि अपने शौहर के माजी की इतनी वाहियात हरकत के बाद वो इस तरह बैठकर उसको सहारा दे रही थी। वो जवेरिया फरहाद खानज़ादा थी। उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया था और अब वो किसी भी कीमत पर अपना रिश्ता ख़राब नहीं कर पाती थी। वो उसको देखते हुए निहायत संजीदगी से बोली थी, फरहाद, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ झेलने का हक़ है, इससे बाहर निकलने का हक़ है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं जानती हूँ तुमने गलती की थी, उस गलती की माफ़ी नहीं है, मगर अल्लाह सबसे बड़ा है, वो तौबा करने वालों को माफ़ देता है। वो बोलकर चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई थी। वो उसे ही देख रही, आंखों में गहरा दुख और हमदर्दी के लिए फरहाद ने झुका हुआ सर उठाया था। उसकी आंखों में देखते हुए सवालिया बोला था, झूठ मत कहना, सच सच बताना। बस एक सवाल है। वो सर को हल्की जंबश देते हुए बोली थी, हुक्म करें, जो भी बात है, मैं हर चीज़ दरवाजे करना चाहती हूँ। उसके कदमों में बैठ गई थी। वो वाकई जवेरिया थी, बहुत बड़े ज़रफ़ की मालिक थी, वरना इसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक अपने का साथ छोड़कर मैके में जाकर जाती। इतनी रुसवाई, इतनी धुतकार के बाद भी वो अपने शौहर का हाथ थाम रही थी। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें ये सब किसने बताया है? सच सच बताना प्लीज़। लेकिन उसके लहजे में एक अधूरा सवाल था, एक अंदर की आवाज़ थी जो जवाब का इंतज़ार कर रही थी। जवेरिया ने नरम और संजीदा लहजे कहा, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि हर अमल का नतीजा होता है, लेकिन अगर अपनी गलतियों पर नादम हो और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हो तो रब माफ़ करने पर कादर है। रहमत से बड़ा कोई नहीं है, मेरा रब बहुत कादर है, वो माफ़ करने वाले। तुम एक बार दिलो दिमाग से तो सोच। फरहाद की आंखों में नमी आ गई। टूटता जा रहा हूँ। जो जवेरिया, ऐसा है कि सादिया सामने खड़ी हुई है, मुझसे पूछ रही है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों उसकी इज़्ज़त को रोंदा, मैंने क्यों नहीं उसकी ज़ात की इज़्ज़त की। तुम्हें मालूम है जवेरिया, मैंने वाकई बहुत दुआएं मांगी, तौबा की है। मैं नहीं चाहता था कि सादिया मर जाए, बस मैं हवस से अंधा हो गया था तुमसे बेइतनाई पर का मतलब सिर्फ इतना है, मुझे याद है कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी और उसके साथ कुछ हो गया तो मैं क्या बर्दाश्त करूँगा। इसीलिए मैं शादी करना चाहता था, लेकिन अम्मी ने ज़बरदस्ती शादी करवाई। जवेरिया उसके करीब आ गई और आहिस्ता से हाथ पर हाथ रख दिया। उसकी निगाह नरम थी, उसकी आवाज़ में एक मोहब्बत भरी आवाज़ थी। फरहाद, मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर की ज़िंदगी इतनी थी तो हम कर सकते हैं, ये अल्लाह की रज़ा है, और तुम्हारा खौफ वो तुम्हारे अंदर का इज़्तिराब है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। उस तरफ मोहब्बत से देखा और फिर उसके कैट कर कहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की हकीकत समझनी
और वो ये है कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारा घर, तुम्हारी बेटी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। तुम क्यों डरते हो? अगर तुम नादिम हो, शर्मिंदा हो तो वो रब माफ़ करने वाला है। तुम गलती तस्लीम कर रहे हो, इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। फरहाद ने एक गहरी सांस ली, बहुत गौर से उसको सुन रहा था। उस चेहरे पर एक नया सुकून आ रहा था, आंखों में रोशनी आ गई, जैसे वो एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रहा हो। सच कह रही हो, शायद मैंने इतने दिनों तक खुद को झुठलाया था। जब मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह की रज़ा के सामने कोई भी खौफ छोटा है। जवेरिया ने उसका हाथ मजबूत से थामा और उससे दी, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और अल्लाह की मदद से हम सब बेहतर कर सकते हैं। उसकी आवाज़ में मुझे यकीन था। चंद लम्हे वो मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था, जिसने आज उस पर रखा हुआ भारी बोझ हल्का किया। वो मदहम लहजे में बोला था, शुक्रिया जवेरिया, तुमने मुझे हकीकत दी और मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा। अपने रब पर भरोसा कर रहा हूँ कि वो बेटी या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। जवेरिया की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देख कहा, हम दोनों मिलकर की रज़ा में जीते हैं और यही से बड़ी खुशी है। ये कहते ही वो करीब तर हो गई थी, जबकि धीरे धीरे उसकी ज़ात में गुम होने लगा। बेशक मेरा रब बहुत कादिर है, माफ़ करने वाला है, मगर सच्ची हो, क्योंकि अमल का दारोमदार नीयत पर है।